Hello guys and welcome back to my YouTube channel. So in this video we will discuss the one numerical on single stage impulse turbine. So I just read the question. Velocity of the steam leaving the nozzle of the impulse turbine is 900 meter per second and the nozzle angle is 20 degree. The blade velocity is 300 meter per second and blade coefficient is 0.7 and calculate for the rate of 1 kg and symmetrical blading. So how to find out the blade inlet angles means beta 1, driving force on the wheel, axial thrust, power developed and diagram efficiency. That's we need to find out from this question. Okay, so what will we find? Beta 1 ft means blade inlet angle, driving force, axial force, power to be developed and blade efficiency. First we need to understand this formula which we studied in previous lectures. This is the ft m dot vw1 plus minus vw2, axial force m dot vf1 minus vf2. This is a power developed ft into u, and this is blade efficiency, power upon energy at inlet. So we just start to solve the problem. First we need to find out the vw1, okay, because for the driving force this is very important. So first you find vw1. So what is vw1? Let's see in the diagram. This is a vw1, okay. So what is vw1? v1, and this is a vw1 is cos component. So v1 cos alpha 1. What would be the value of v1? v1 is 900 meter per second. Cos, what is the value of alpha 1? Alpha 1 is 20. So after solving, the value of vw1 is 845.72 meter per second. This is the value of vw1. Then what is from the first inlet triangle? What also is vf1. So what is the vf1? vf1 is sine component of v1. So v1 sine alpha 1. So what is the value of v1? 900 sine 20. So what after solving, value is 307.81 meter per second. This is the value of vf1. So what would we need? Because the k is here. What the ratio of k is equal to beta 1 upon beta 2. So हमें beta 1 निकालना इम्पोर्टेंट है. तो बीटा 1 कैसे निकलेगा? तो दिस इज बीटा 1. बीटा 1 यहाँ पे कैसे आएगा? देखिए सॉल्व करते हैं. सबसे पहले क्या आएगा? tan बीटा 1 इज इक्वल टू अपोजिट अपॉन एडजेसेंट. सो अपोजिट क्या है? vf1 अपॉन एडजेसेंट क्या आएगा? vw1 माइनस u. vw1 माइनस u. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ vf1? 307.81 upon vw1 is 845.72 minus u is 300. So after solving, beta कितना आएगा? 29.42 degree. This is a beta 1. After हम क्या करेंगे? इस बीटा 1 को कहाँ पे पुट करेंगे? अब हम ये जो रेशो दिया हुआ है k इज इक्वल टू बीटा 1 अपॉन बीटा 2. k की वैल्यू कितनी? k इज इक्वल टू 0.7. सो k इज इक्वल टू बीटा 1 अपॉन बीटा 2. बीटा 1 की वैल्यू अपने पास कितनी है? 99.42. दिस इज बीटा 2 एंड दिस इज 0.7. सो अब से यहाँ से बीटा 2 की वैल्यू कितनी आएगी? सेम. जस्ट वेट, सॉरी फॉर दिस मिसकंसेप्ट. सो just wait. In the question that were asked is symmetrical blading. All right, what is symmetrical blading? Please see in this question, symmetrical blading. Therefore beta 1 is equal to beta 2. okay, so तो फिर क्या आएगा अपना? ये जो क्या है से ब्लेड कोएफिशिएंट है. सो बीटा 1 इज इक्वल टू बीटा 2. सिमेट्रिकल ब्लेड होने के कारण बीटा 2 भी अपना कितना आएगा? 29.42 डिग्री. ओके, आफ्टर दैट हम क्या करेंगे? आप
VR1 निकालेंगे फ्रॉम दिस क्वेश्चन। VR1 कैसा आएगा, अपने पास क्या है VF1 है, ठीक है। और ये जो VR1 कैसा है, ये VF1 VR1 का साइन कंपोनेंट। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले साइन बीटा 1 ले लेते हैं। क्या आएगा VF1 अपॉन VR1। साइन क्या आएगा, साइन 29.42, what is the value of VF1? VF1 is 307.31 upon VR1. After solving this, what is the value of VR1? It is not come up to 626.63 meter per second. This is the value of VR1. ओके अब यहाँ से हमको जो कोएफिशिएंट है, जो ब्लेड कोएफिशिएंट है, वो हमको यूज़ करना है। क्या आएगा VR1 इज इक्वल टू VR2 बाय VR1 इज इक्वल टू K। यहाँ पे ये यूज़ होगा। सो अपना VR1 कितना है, VR2 अपने को फाइंड आउट करना है। VR1 कितना आएगा 626.63, K इज 0.7। आफ्टर सॉल्विंग दिस द वैल्यू ऑफ VR2 इज कम आउट टू बी 215.647 meter per second. This is VR2. सो ये सब हमने निकाल दिया। अब हमको ज़रूरत क्या, इंपॉर्टेंट क्या है, VW2 हमें निकालना है। अब हम लेते हैं सेकंड वेलोसिटी ट्राइंगल के अंदर। अपने पास यहाँ पे क्या क्या गिवन है, cos β2 अपने पास गिवन है इस सेकंड वेलोसिटी ट्राइंगल के अंदर। सो देखते हैं तरह से क्या यूज़ होता है। सबसे पहले क्या लेते हैं, ये जो VW2 है किसका है, बीटा का कॉस कंपोनेंट है। तो हम क्या करते हैं, चले कॉस β2 को यूज़ करके देखते हैं ट्राई करके। कॉस β2 क्या आएगा VW2 प्लस यू, VW2 प्लस यू अपॉन यहाँ से क्या आएगा, यहाँ पे VR2। ये VR2 जो हमने अभी निकाला यहाँ पे यूज़ होगा। कॉस β2 कितना आएगा, कॉस 29.42 इक्वल टू VW2 अपने को फाइंड आउट करना है, प्लस यू कितना आएगा 300 अपॉन VR2 कितना आएगा 215.647। आफ्टर सॉल्विंग दिस वी गॉट दिस VW2 इज माइनस 840.53 मीटर पर सेकेंड। कितना आ रहा है माइनस 84.53 मीटर पर सेकेंड। तो इससे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले आपने क्या फाइंड आउट करना है आपसे, FT। β1 हमने निकाला, अब क्या चाहिए हमको, FT चाहिए। सो हम FT निकाल लेते हैं, ठीक है। व्हाट विल द वैल्यू ऑफ FT इज इक्वल टू m डॉट VW1 प्लस माइनस VW2। सो क्या आएगा m डॉट अपना कितना है 1 kg दिया हुआ है। VW1 कितना आया था अपना 845.72 माइनस, ये जो है माइनस है, ठीक है। तो मैं इसको प्लस ले लेता हूँ यहाँ पे, और माइनस कितना आएगा 84.53 से इसकी FT की वैल्यू कितनी आती है, टेंजेंशियल फोर्स 761.18 न्यूटन। ओके, दिस इज द वैल्यू ऑफ FT। अब हमने FT निकाला, अब हम क्या निकालते हैं, एक्सियल फोर्स निकालते हैं। एक्सियल में क्या है VF1 माइनस VF2। सो एक्सियल फोर्स इज इक्वल टू m डॉट VF1 माइनस VF2। सो m1 तो है, m डॉट 1 आएगा। VF1 की वैल्यू कितनी आई थी अपनी 307.81, और VF2 की वैल्यू कितनी आई थी अपनी 215.647। So after solving this, value of Fe is come out to be 92.163 Newton. This is a axial force. Okay, so power develop क्या आएगा, power is Ft into U. So value of Ft कितना आया था 761.18। U कितना है 300। सो वैल्यू कितनी आएगी अपनी 288.35 किलो वाट। इतना पावर अपना डेवलप्ड हुआ।
अब अनदर टर्म क्या आएगा अपना, ब्लेड एफिशिएंसी अपने को निकालनी है, देखते हैं कैसे निकालते हैं। सो ब्लेड एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या है, एम डॉट VW1 प्लस VW2 इंटू यू अपॉन 1/mv²। सो लिख लेते हैं इस फॉर्मूले को आप यहाँ पे, ब्लेड एफिशिएंसी इज इक्वल टू एम डॉट VW1 प्लस VW2 टू यू अपॉन 1/mv²। ये एम डॉट ऐसे कैंसिल हो जाएगा, ये 2 पर चला जाएगा। सो 2 इंटू VW1 क्या आया था अपना, वैल्यू ऑफ VW1 इज एट 45.72 माइनस 84.53, यू की वैल्यू क्या आई थी 300। सो V1 क्या वैल्यू क्या आएगा, V1 इज 900, सो 900 का स्क्वायर। सो इससे अपनी ब्लेड एफिशिएंसी कितनी आती है, NB इज इक्वल टू 56.38%। सो हियर दिस एंड ऑफ दिस प्रॉब्लम, हमने पांचों यहाँ पे फाइंड आउट कर लिया। वी वर फाइंड β1, FT भी फाइंड किया, FA भी फाइंड किया, पावर भी फाइंड किया एंड ब्लेड एफिशिएंसी भी फाइंड आउट किया। सो आई विल put the one question for you to try this question. After being in next lecture I will discuss, I will show the solution of this question. Okay, so this is enough for today. Have a good day. Bye bye.